गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। MMKP यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हर सुबह की तरह ये वीडियो भी आप तक पहुँच चुकी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस के कुछ प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं मिसलिनियस की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट सो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Here are given these problems. R1 and R2 are equivalence relation and A is any set. Then show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation. Now taking the set A. First of all, take the set A. The set A equal to A, B, C dot any element. Set A have the any element A, B, C, D and given R1 is an equivalence relation अर्थात reflexive, symmetric and transitive condition are already satisfied for R1 and R2 is also equivalent relation and R2 is an equivalence relation अर्थात R1 is satisfied reflexive, symmetry, transitive condition satisfied. Now so that R1 intersection R2 is also an equivalence relation. First of all, we write this problem and A is a set, R1 equivalence relation, R2 equivalence relation and so that R1 intersection R2 equivalence relation. Now write the condition for equivalence relation. For देखिए A, B, A, A belongs to R1 for every A belongs to set A. This condition are reflexive and A, B belongs to R1 and B, A belongs to R1. For every A, B, two elements belong to set A. This condition are symmetric. And A, B, B, C, then that implies then A, C is belongs to R1. For every A, B, C elements belong to set A. This condition are transitive. Three conditions are already satisfied for R1 set and R2 set. अर्थात both set are equivalence. That implies A, belongs to R1, R2. For every A belongs to set A, B, B, A belongs to R2. For every A, B belongs to आपके पास set A, B, B, C और A, C belongs to R2. For every A, B, C belongs to set A. First condition is reflexive, symmetric and transitive. Three conditions are satisfied R2 and three conditions satisfied in R1. R1 is equivalence relation, R2 and equivalence relation. Then the A, ordered pair A, belongs to R1 intersection R2. Because ordered pair A, belong R1 and A, belong R2, then intersection equal to collection of the common element या collection of the
कॉमन ऑर्डर्ड पेयर। तो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर a, a belongs to R1 intersection R2 for every a belongs to set A. This condition are symmetric. This condition are reflexive. Now, ordered pair a, b belongs to R1 and a, b belongs to R2. That is a, b belong to R1 intersection R2 and b, a belongs to R1 intersection R2 because the ordered pair a, b and b, a belongs to R1 and R2. Now taking the intersection both set R1 and R2, a, b belongs to R1 and b, a belongs to R1 and a, b belongs to R2 and b, a belongs to R2, then the a, b and b, a belongs to R1 intersection R2. That is a, b, a belongs to R1 intersection R2. This condition are symmetric. Now, we see the R1, a, b, b, c and a, c belongs to R1. And now to see the R2, a, b, b, c, a, c ordered pair belongs to R2. That is the collection of a, b, ordered pair a, b, ordered pair b, c, ordered pair a, c are like the both intersection R1 and R2. Then a, b, b, c, a, c belongs to R1 intersection R2. This condition are transitive. All three conditions are satisfied for intersection R1 and R2. Then R1 intersection R2 are an equivalence relation. That implies R1 intersection R2 is also an equivalence relation. Now, so that this problem we are clear for this. उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। चलिए आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि हमने इसी बुक से ली है, एनसीईआरटी बुक 12th क्लास की मिसलेनियस प्रॉब्लम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम अगेन आर we show that the R is equivalence relation. Now we read this problem. R be a relation on set A. We are given the R relation and set A of ordered pair. Set A is the ordered pair, अर्थात collection of the ordered pair of set A of positive integer. Now ordered pair are taking the positive. ठीक, चलिए डिफाइंड बाई x, y आर रिलेशन u, v x, y एक ऑर्डर्ड पेयर u, v आर सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट A if and only if x, v equal to y, u so that R is an equivalence relation. तो क्या कहा गया है प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम ये कहती है हमें कि हमारे पास एक सेट A है, उस सेट A के अंदर ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, वे ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर बने हैं। ठीक, और कहा गया है जो रिलेशन हमारे पास है वो इस तरीके से है कि x, y एक ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन u, v के ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन से अगर हम लेते हैं, ऑर्डर रिलेशन से लेते हैं, तो हमारे पास x, v इक्वल टू y, u बनता है। तो बताइए R आपके पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द सेट A. सेट A इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x, y u, v ठीक a, b dot dot all ordered pair are positive integer. Now we see the relation R.
अर्थात गिवन द रिलेशन x, y ordered pair are relation u, v ordered pair that implies x v के साथ इक्वल टू y u के साथ. Okay, this is a relation. This problem are very important. Now solve for the very easy way. So now show that R is an equivalence relation. So that three condition. First is reflexive. We are taking the same ordered pair x, y relation x, y. That implies x to y, y to x. For every x, y belong to x, y ordered pair belongs to set A. ठीक, reflexive condition are satisfied. Now taking the symmetric condition, we are take the two ordered pair x, y and u, v. x, y relation u, v. That implies x v के साथ yu. We are given the already this relation. One ordered pair are relation, second ordered pair. This is condition are already satisfied. Now xv equal to yu. We write the yu equal to xv. That implies yu equal to xv. We write this inequality y, x ordered pair relation u, v. Now if यदि x, y or relation u, v are satisfied and y as ordered pair relation u, v satisfy this condition, then this is a symmetric condition. अर्थात यहाँ पर symmetric condition भी क्या करेगी, होल्ड करेगी. तो हम कह सकते हैं सिमेट्रिक कंडीशन आर सेटिस्फाई. ये भी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर सेटिस्फाई होगी. चलते हैं अपनी तीसरी कंडीशन की ओर. नाउ तीसरी कंडीशन आर ट्रांजिटिव. कंडीशन ए टू बी, बी टू सी एंड ए टू सी होगी. वी आर टेकिंग द थ्री ऑर्डर्ड पेयर transitive. Taking the three ordered pair x, y, u, v and a, b belong to set A. First relation x, y are relation u, v. That implies x, v equal to y u. ठीक, एंड यू बी रिलेशन ए बी. ओके, चलिए, या हम यहां से अगर इसे कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं x अपॉन वाई इक्वल टू यू अपॉन वी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यू बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन ए, बी. दैट इंप्लाइज यू बी equal to VA. Okay, we are write this inequality U upon B equal to A upon B. Equation number second. Okay, equation number first, find B. Equation number first given the value U upon B, and equation number second given the value U upon B, and equal to equation number first and equation number second. Now write x upon y equal to a upon b from equation first and equation second.
write this inequality x into b equal to y into a. Now write this inequality x comma y relation a comma b. ठीक, that implies all condition are satisfied. X y relation ub and ub relation ab and xy relation ab, that implies transitive condition are satisfied. Here all three conditions are satisfied. First reflexive, second symmetry, and third transitive condition. Then R is an equivalence relation for this set ordered pair. So I hope that your problem are very clear. No doubt this problem. नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम की तरफ. तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ स्टार्ट द न्यू प्रॉब्लम. न्यू प्रॉब्लम अगेन आर डिपेंड द इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक, फॉर दिस first set are given the x equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 element and R1 is the a set. R1 is the collection of the x minus y difference and divisible by third. कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि R1 जो आपके पास सेट लिया गया है वो x माइनस वाई ऑर्डर पेयर का है और x माइनस वाई जो ऑर्डर पेयर है वो x माइनस वाई के डिफरेंस का है और वो भी किससे 3 से डिविजिबल होते हैं. तो वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जो x और y का डिफरेंस हो और 3 से डिविजिबल हो. चलिए दूसरा R2 इज अगेन एक्स वाई सेट सबसेट होगा 1 4 7 एंड x y सबसेट 2 5 8 और एक्स वाई सेट या ऑर्डर पेयर सबसेट होगा 3 6 9 का. तो R2 हमारे पास दिया गया है जिसमें हमें ऑर्डर पेयर x y बनाना है, बट ऐसा लेना है कि जो x y होगा वो 1 4 7 का होगा या 2 5 8 का होगा या 3 6 9 का होगा. और आफ्टर दैट बताना होगा हमें कि R1 जो होगा वो R2 के इक्वल होगा, अर्थात जो सेट R1 है वो सेट R2 के इक्वल होगा. चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो सेट दे रखा है वो तो दे ही रखा है. R1 के अंदर भी राइट लिखते हैं हम क्या, x माइनस वाई इस डिविजिबल बाई किसके द्वारा, थर्ड के द्वारा. तो क्या क्या बनेगा देखिए 1 3 1 1. ओके, नेक्स्ट 1 4 1 7 1 आपके पास 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं ऑलरेडी, बस ये है. और भी होंगे, जैसे हम कह सकते हैं 2 5 और 2 8 2 8 हो गया, 3 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 आपके पास होगा 6. इस तरीके से वो सेट बनाने हैं हमको, वो कलेक्शन करना हमें जो डिफरेंस क्या होगा हमारा 3 से डिविजिबल होगा, या 3 भी होगा तब भी हमारे पास चलेगा और मल्टीपल ऑफ 3 होगा तब भी चलेगा, या डिविजिबल 3 से होंगे तब भी हम कहें. चलिए अब बात करते हैं R2 की. R2 कहता है कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर का जो कलेक्शन है वो 1 4 7 हो सकता है. देखिए 1 4 7 कैसे हो सकता है, 1 और 4 का क्या हो जाएगा, 1 4 होंगे ऑर्डर पेयर और एक होगा 1 7 होंगे और 4 7 होंगे. तो ये आपके पास 3 ऑर्डर पेयर रखे होंगे किसके अंदर, R2 के अंदर, जब सेट 1 4 7 से मिलकर बना. तो ये भी 3 का डिविजिबल आपके पास सेट बनता है, R1 भी 3 का डिविजिबल सेट बनता है. तो हम कहेंगे कि R2 जो होगा सबसेट होगा किसका, R1 का. क्लियर. चलिए, क्योंकि R1 के अंदर 1 7 भी आएगा, 4 7 भी आएगा, 1 4 भी आएगा. अगर हमारे पास ओनली 3 एलिमेंट का सेट है R2,
तो हम ये कहेंगे कि R2 जो होगा वो सबसेट होगा किसका, R1 का। अब अगर इसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और कहें हमारे पास R2 जो है वो इन सबको एक साथ रख के बनाया गया है। कैसे? हमारे पास जो है 1,4,7, 2,5,8 और 3,6,9 ये है। अब इन्हीं में डिफरेंस करके आपके पास डिफरेंस करके हमें वो कलेक्शन करना है जिनका आपके पास क्या होगा, 3 का डिविजल होगा। या अगर हम ये कहें कि इस तरीके से है हमारे पास सेट R2 के अंदर जो आपके पास पेयर है 1 4 1 7, ठीक, 1 2 3 2 5 और 3 6 3 9, इस तरीके से पेयर बनते हैं, तब हम कहेंगे, और R1 हमारे पास यही है, तब R2 हमारे पास कहीं ना कहीं बड़ा होगा और R1 कहीं ना कहीं छोटा होगा, तो R1 सबसेट होगा किसके लिए, R2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2। पहले R1 बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि R2 में हमने एक ही सेट के लिए थे, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, देखिए और लगा था, कहाँ पर था ये, और ये रहा। वो ये कहता है कि x, y जो ऑर्डर्ड पेयर है x y सबसेट होगा 1 4 7 का, इतने के ही सेट का सबसेट होगा। अगर इतने के ही होगा तो कहीं ना कहीं 1 4 7 जो होगा वो छोटा होगा, या ये कह सकते हो 3 ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट बनाएगा, और 3 ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट कहीं ना कहीं R1 से क्या होंगे, छोटे होंगे, उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा R1। अब R2 के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट हम रख लेते हैं, तो R2 जो है ऑर्डर्ड पेयर अपने बनाता है, बढ़ जाते हैं, और R2 के कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर बड़े हो सकते हैं किससे, R1 से। तो और R1 के अंदर वे तो रहेंगे कहीं डिविजिबल हैं, और R2 के अंदर वे एलिमेंट रखे थे जो डिविजिबल हो रहे थे, जो डिफरेंस मल्टीपल में आ रहे थे 3 के, तो वे डिविजिबल होंगे किससे, 3 से। तो हम कहेंगे R1 सबसेट होगा किसके, R2 के। तब हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से कि भैया R1 और R2 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, नाउ प्रॉब्लम इज कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आइए, तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर हमें मिलती है एक इक्विवेलेंस रिलेशन की है, जो कि कहती है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन द फंक्शन f such that x to y be a function domain x codomain y function f, define a relation R. Now define the relation R in x given the set x given y. R relation equal to x y x a comma b ordered pair such that f a equal to f b. Examine whether R is an equivalence relation. So first of all we write this the some information in this question. First of all, f such that x equal to y is a function, okay, and R is a relation. R equal to a comma b ordered pair such that f a equal to f b, okay. Now show that R is an equivalence valence relation या नॉट, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, ये हमें बताना है। अब आर रिलेशन के अंदर क्या एलिमेंट रखे हुए हैं, वो कहता है कि आर रिलेशन के अंदर वो पेयर रखे हुए हैं जो एफ ए बराबर किसके होंगे, एफ बी के होंगे। तो हमारे पास सेट एस दे रखा था, तो हमने कहा सेट एस इक्वल टू, ये ले लिया ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई, ये एलिमेंट का सेट ले लिया। अब आर के अंदर हमारे पास जो पेयर रखे हुए होंगे वो इस तरीके से होंगे। आर के अंदर ए कोमा बी एक पेयर, दूसरा बी कोमा सी, तीसरा सी कोमा डी, इस तरीके के हमारे पास पेयर होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने फर्स्ट कंडीशन पे, जो कि होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कहती है कि अगर आपके पास सेम एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर है और वो भी आपके पास आर रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या कहलाएगी, एक रिफ्लेक्सिव कंडीशन कहलाएगी। चलिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ए कोमा ए, ये आपके पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, किसके अंदर बिलोंग करा रहे हैं, आर रिलेशन के अंदर, तो हम कहेंगे कि एफ ए बराबर किसके होना चाहिए,
एफ ए के होना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्डर पेयर ए कोमा बी होता है तो एफ ए बराबर एफ बी होता है। जब ऑर्डर पेयर ए ए होगा आर रिलेशन के अंदर, अर्थात इसी के अंदर ये भी कहीं ना कहीं रखा होगा, चाहो तो आप रख सकते हो इस तरीके से, तो हम कहेंगे ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर के अंदर रिलेशन को, तो एफ ए बराबर एफ बी होगा, अर्थात रिफ्लेक्सिव कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक, चलते हैं दूसरी कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारे पास है सिमेट्रिक कंडीशन ये कहती है कि किसी भी रिलेशन आर के अंदर अगर ए कोमा बी बिलोंग करता है तो बी और कोमा ए बी अगर बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे कि वे दोनों ऑर्डर पे अगर एक सेट ए के अंदर हैं तो आर क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्स सिमेट्रिक कंडीशन को होल्ड करेगा। चलिए, कहने का सिंपल सा मतलब है कि ए कोमा बी यदि बिलोंग करता है आर के अंदर तो हम कहेंगे कि ए कोमा बी इक्वल होगा, क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी की कंडीशन होल्ड करेगा। और हम इसे लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू एफ ए, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा बी कोमा ए बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर के अंदर। तो ए बी हम लेके चले थे आर में और बी ए भी हमारे पास आ गया किसके अंदर, आर रिलेशन के अंदर, जो हमारे पास रिलेशन आर दिया था उसी के अंदर। तो हम कह देंगे कि भैया सिमेट्रिक कंडीशन आर सेटिस्फाई, कैसी होगी, सेटिस्फाई करेगी, होल्ड करेगी। चलते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ, जो कि हमारे पास होती है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव क्या होती है, ट्रांजिटिव ये कहती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी है, ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन आपके पास दिया वो सेटिस्फाई करता है, उसके बाद बी कोमा सी सेटिस्फाई करता है, तो ए कोमा सी भी अगर सेटिस्फाई कर जाए और वो आपके पास आर रिलेशन के अंदर ही बिलोंग करे तो क्या कहलाएगी, ट्रांजिटिव कंडीशन होल्ड करेगी। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ए कोमा बी जो कि बिलोंग करता है आर के अंदर और कंडीशन सेटिस्फाई करता है एफ ए इक्वल टू एफ बी। दूसरी कंडीशन जो कि सेटिस्फाई करता है बी कोमा सी बिलोंग करता है आर रिलेशन के अंदर और कंडीशन भी होल्ड होती है एफ बी इक्वल टू एफ सी। जरा देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें, ये सेकंड इक्वेशन मान लें और कहें हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से, तो हम कहेंगे कि एफ ए इक्वल होगा एफ बी के और एफ बी इक्वल होगी एफ सी के। तो एफ ए इक्वल हो जाएगा किसके साथ, एफ सी के साथ। फिर हम कहेंगे ए कोमा सी भी ऑर्डर पेयर आर के अंदर बिलोंग करेगा और ट्रांजिटिव कंडीशन भी कैसी होगी, सेटिस्फाई होगी। ट्रांजिटिव कंडीशन आर सेटिस्फाई, कैसी होगी, सेटिस्फाई करेगी। तो कह सकते हैं हम ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो जो आपके पास रिलेशन आर है वो क्या कहता है, वो हमारे पास इक्विवेलेंस की कंडीशन को होल्ड कराता है, अर्थात इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। आइए चलते हैं अपनी लास्ट की प्रॉब्लम। आज की हमारी जो लास्ट की प्रॉब्लम है बट बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है या दो फंक्शन हमारे पास दे दी जाए कि एक f फंक्शन एक g फंक्शन है, f फंक्शन 1 है, g फंक्शन 1 है, तो क्या f प्लस जी भी आपके पास 1 होगा? तो हमारे जवान से निकलता है हाँ 1 ही होगा। क्यों कि कोई एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा भी आदमी काम कर रहा है, तो क्या दोनों मिलकर काम करेंगे? तो हमारे दिमाग से निकलता है हाँ करेंगे, बट ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए, हो सकता है वे आपस में कोई काम ना कर पाए, उन दोनों में आपस में ट्यूनिंग ना बने। तो आइए आज उसी को हम करते हैं और आपके सामने ही बात करेंगे कि अगर एक फंक्शन 1 है, दूसरा फंक्शन भी 1 है, तो दोनों फंक्शन अगर ऐड किए जाए तो 1 नहीं होंगे। चलिए उसी पे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास कहा गया है कंसीडर ए फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है ये 0,π/2 इक्वल टू क्या है r दिया गया है, जहाँ पर f(x) एक फंक्शन है और वो कैसा है, sin x है। बस यहीं रुक जाइए, sin x है। वो कहता है कि f(x) और gx दोनों कैसे हैं, 1 है। तो पहले क्यों ना f(x) को हम 1 दिखाते
और दिखाएं कि ये वास्तव में 1 1 है। अब 1 1 की कंडीशन क्या होती है, ये हमारे दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। देखिए 1 1 का मतलब होता है जैसे रास्ते से गए वैसे रास्ते से वापस आ गए, वो कहलाती है वन वे आ जाना और 1 वे आना, वो कहलाएगा 1 1 मैपिंग। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई काम करने गए और वो काम ना हुआ और हम वापस ऐसे ही आ गए तो हम कहेंगे वो भी हमारे पास 1 1 हो गए, क्योंकि जैसे मूड से गए थे वैसे मूड से वापस आ रहे हैं तो हम कहेंगे वो भी हमारे पास 1 1 मैपिंग है। तो हम उसी को कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि अगर हम 2 एलिमेंट लेके चलें और दोनों एलिमेंट वो हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, इक्वल नहीं है, और उन दोनों की इमेज भी हमारे पास नॉट इक्वल निकल के आए, तब भी हम कहेंगे वो 1 1 मैपिंग है। या अगर हम कहें कि हम 2 एलिमेंट इक्वल लेके चले और उन दोनों की इमेज भी इक्वल आ जाए, तब भी हम कहेंगे कि वो आपके पास 1 1 मैपिंग है। क्लियर? ये सारी चीज़ें अगर उनमें से एक भी कंडीशन हो गई तो 1 1 है, अदरवाइज 1 1 नहीं है। लेट माना x1 एंड x2 आर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चले, हम कह सकते हैं कि s1 अर्थात x1 नॉट इक्वल टू कैसे हैं x2। बनाइए f(x1) क्या बनेगा, f(x1) बनेगा sin x1 और f(x2) क्या बनेगा, f(x2) बनेगा sin x2। चलिए अगर हम कहें कि हमारे पास x1 और x2 दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं इंटरवल 0,π/2 में, और अब हम कहें कि x1 बराबर 0 है और x2 बराबर भैया π/2 है, तब दोनों अलग हैं, ये कंडीशन होल्ड हो रही कि x1 नॉट इक्वल टू x2 है। और हम आपसे कहें कि जरा f(x1) की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कहोगे, f(0) की वैल्यू अर्थात sin 0 की वैल्यू तो कितनी आएगी 0, और कहा जाए आपसे जरा f(x2) की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करोगे f(π/2) की वैल्यू और sin π/2 की वैल्यू, तो आप क्या कहोगे 1, तब आप कहोगे कि भैया f(x1) नॉट इक्वल टू किसके आ गया, f(x2) के आ गया। कहोगे कि आपके पास जो फंक्शन आपके पास लेके चले थे f(x) बराबर sin x, वो कैसा होगा 1 1 मैपिंग होल्ड होगी उसके अंदर, अर्थात 1 1 फंक्शन होगा। डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चले, डिस्टिंक्ट इमेज आ गई हमारे पास, तब हम उसी के बेस पे कह रहे हैं कि फंक्शन आपके पास जो f है वो कैसा है 1 1 फंक्शन है। चलिए अब चलते हैं दूसरे फंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास दिया गया है gx बराबर cos x। देखिए gx मैपिंग जो आपके पास दी गई है, ये लिख लेते हैं 0,π/2 इक्वल टू कहाँ तक जा रही है r तक। डोमेन क्या है 0,π/2 इंटरवल है क्लोज, और r क्या है ओपन इंटरवल है। फंक्शन क्या दे रखा है gx इक्वल टू cos x। इसमें भी 2 एलिमेंट ले लें, लेट माना x1 नॉट इक्वल टू x2, बट x1 और x2 बिलोंग करेंगे किसके अंदर 0,π/2 के, ये हम लेके चल रहे हैं। तब हम कहेंगे कि भैया f(x1) किसके इक्वल होगा, हमारे पास होगा cos f(x1) इक्वल होगा cos x1 के इक्वल, और f(x2) इक्वल होगा cos x2 के इक्वल, और x1 बराबर अगर हम इसमें भी कहें कि 0 और x2 बराबर हम कहें π/2, तब देखिए f(x1) इक्वल टू f(0) इक्वल टू cos 0, वैल्यू क्या आएगी 1। दूसरी वैल्यू हमारे पास बनेगी f(x2) इक्वल टू f(π/2) इक्वल टू हमारे पास वैल्यू बनेगी cos π/2 अर्थात 0। तब हम कहेंगे कि भैया f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2), दैट इम्प्लाइज f नहीं g चल रहा था, f हटा दीजिए, यहाँ से g है, g फंक्शन है, बस ध्यान रखिए ये g फंक्शन है, ये g फंक्शन है, ये भी g फंक्शन है, और ये भी g फंक्शन, क्योंकि fx तो हमारे पास sin x था और ये हमारे पास कैसा है cos x। तो हम कहेंगे gx इक्वल टू cos x इज ए 1 1 फंक्शन। तो fx इक्वल टू cos x, fx इक्वल टू sin x भी 1 1 हुआ, और gx बराबर भी हमारे पास cos x 1 1 मैपिंग हुई। अब हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास जो इन दोनों फंक्शन को ऐड करते हैं, कैसे f प्लस g, ये हो गया ऐड, सच दैट
इंटरवल कहाँ से बनेगा, इंटरवल यही रहेगा 0 से लेकर π/2। तो देखिए इंटरवल 0 to π/2 कहाँ तक पहुँचेगा, r तक। डोमेन हमारे पास कौन है, 0 और π/2 ही है, ठीक है। चलिए अब हमें कहा गया है कि f प्लस एक्स जी, जो आपके पास फंक्शन है वो ये है f प्लस जी एक्स इक्वल टू किसके बनेगा, हमारे पास दोनों फंक्शन को जोड़ लेते हैं तो बनता है sin x प्लस cos x, ठीक। और x जो बिलोंग करेगा वो 0, π/2 में बिलोंग करेगा इंटरवल में। क्लियर। चलिए अब ध्यान से सुनते जाइए। इसमें भी हमें वही प्रोसेसिंग करनी है कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 लेके चले और x1 और x2 हमारे पास बिलोंग करें किसके अंदर, इंटरवल 0 और π/2 के बीच, तो क्या उन दोनों की इमेज भी नॉट इक्वल आती है। अगर नॉट इक्वल आएगी तो फंक्शन 1 होगा, और अगर नॉट इक्वल नहीं आई, इमेज इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे वो फंक्शन नॉट 1 होगा, मतलब 1 नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं f प्लस जी और x1 के साथ, तो बनेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बनेगा ये sin x1 प्लस cos x1। क्लियर। चलिए दूसरा हमारे पास बनेगा f प्लस जी x2 के साथ, तो आएगा हमारे पास sin x2 प्लस cos x2। अब अगर हम कहें कि x1 बराबर 0 ले लें और x2 बराबर हम π/2 ले लें, तब देखें तो क्या बनता है, f प्लस जी और किसके साथ, 0 के साथ, तो sin 0 प्लस cos 0, तो वैल्यू आती है हमारे पास 0 प्लस 1, अर्थात क्या वैल्यू निकल के आती है, हमारे पास 1 वैल्यू आती है, ठीक। दूसरी हमारे पास वैल्यू है f प्लस जी और π/2। अब क्या हमें π/2 लेना, क्योंकि x2 के स्थान पर कौन ले रहा है, π/2 ले रहा है, तो देखिए क्या वैल्यू आती है, sin π/2 प्लस cos π/2। π/2 वैल्यू लेते हैं तो sin π/2 1, cos π/2 0, वैल्यू निकल कर आती है 1। तो देखिए f प्लस जी जब फंक्शन हम दोनों ने ऐड किया और एक जगह बाद 0 लिया हमने s1 और s2 हम π/2 लेके चले, तो उन दोनों की इमेज कैसी आती है, सेम आती है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास इमेज कैसी आ रही है भैया, सेम आ रही है कि x1 बराबर इमेज के साथ f प्लस जी x2 दोनों इक्वल आते हैं, और लेके हम कैसे चले थे, एलिमेंट नॉट इक्वल लेके चले थे, बट यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि भैया यहाँ पर कंट्राडिक्शन बनता है। जब कंट्राडिक्शन बनता है तो सिंपल सी बात है, हम कह देंगे कि f प्लस जी इज नॉट ए 1 फंक्शन। तो f प्लस जी कैसा होगा, 1 नहीं होगा। तो देखिए क्या देखा हमने अपनी आंखों के सामने, f भी 1 था, f हमने 1 की बात करी, g हमने 1 की बात करी, और जैसे ही हमने इन दोनों फंक्शन को ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने देखा कि भैया f प्लस जी कैसा आ रहा है, वो 1 नहीं आ रहा है, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमें प्रूफ करना था। उन्हें ये कहा था कि ये बताइए कि f प्लस जी आपके पास नॉट 1 होगा तो कैसे होगा, इस तरीके से होगा। सारी चीज़ें आपके सामने, ठीक। तो अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी, समझ में आ रही हैं आप लोगों को ये चीज़ें, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इन्हें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे हम मिसलेनियस की एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।